Good afternoon, sir. PPT is visible in full mode? Yes, sir. Okay. So what were we doing in the last class? We were solving a numerical on the beam, है ना? So the same numerical we will complete today. So what was the numerical? There is a fixed support. There is a beam. There is one more support, that is ruler. The load is coming 20 kilonewton. The Young's modulus is how much? कितना दिया था? याद है किसी को? 20 into 10 to the power 5 Newton per centimeter square. And the moment of inertia is 2500 centimeter power 4. Okay. Question क्या है? Find the nodal displacements. Find the nodal displacements. तो यदि हम इस पूरी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दें, this is node number 1, and the point at which the load is coming, let this point is 2, this is 1, this support is 3, this is element number 1, this is element number 2. Okay, so we have to find the nodal displacements. Nodal displacements. So what are the nodal displacements? V1 theta 1, V2 theta 2, V3 theta 3. These 6 are the nodal displacements. Okay, and at this point the shear force is F1, moment M1. Similarly here F2, M2, F2 and M2. 20 kilonewton is coming over here, and at this point F3, M3. Okay, so point-wise shear force and bending moment, and point-wise nodal displacements. So we have to find the nodal displacements. So in the previous class we have calculated the stiffness matrix for K1 also and K2 also, and both are same. Both are same because Young modulus is same, inertia is same for both elements, and length of the element is also same. The total length is 1000 millimeter, and individual length of the element is 500 millimeter. So this is 500 mm, and this is also 500 mm. So K1 and K2 is given by EI by L cube. So what is the value of EI upon L cube? So EI is 20 into 10 to the power 5. Inertia is 2500. L is 500 power 3. इसको सॉल्व करके देखिए क्या 400 आ रहा है? चेक करिए जरा. यस नो बता दीजिए, कैलकुलेटर साथ में रखिए. It is coming 400 or not? Sir, 4,400. नहीं, 4,400 तो कल आया था ना जब हमने यंग्स मॉडुलस 420 दिया था आपको कल. यहाँ यंग्स मॉडुलस की वैल्यू चेंज थी है ना, तो वो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 220 into 10 to the power 6 थी. हाँ, तो 220 नहीं है, there is only 20. Okay. 20 into 10 to the power 6 ये मानिए. तो अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? Yes sir, 400 आएगी. हाँ, तो 400 आ गया. 400, yes sir. जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपको टर्म याद है? 12, 6L है ना, उसके बाद 6L 4L स्क्वायर, ये दो टर्म होते हैं. उसके बाद 12, 6L 2L स्क्वायर, उसके बाद -12 6L -12 -6L
6L 2L square, then 12 minus 6L minus 6L 4L square. ये याद है ना मैट्रिक्स, कल बताया था हमने. Yes, sir. इसका डेरिवेशन. हाँ, तो बस इसमें वैल्यूज रख देते हैं. 12 L इक्वल टू 500, 6 इंटू 500 3000. ठीक है. 6L इज अगेन 3000. 4L स्क्वायर कितना आएगा निकालो. 4 इंटू 500 स्क्वायर. 10 power 6. 1 इंटू 10 टू द पावर 6. ये माइनस 12, देन 3000 माइनस 3000. 2L स्क्वायर कितना आ जाएगा. 5 into 10 power 6 to 5. है ना. उसके बाद माइनस 12 माइनस 3000. ओके. एंड देन माइनस 3000 के बाद कितना आएगा. ये भी 3000. 2L square is 5 into 10 to the power 5. It's 12 minus 3000 minus 3000. 1 into 10 to the power 6. Please check. Is it correct? Say yes, sir. सही है ना. So K1 is same and K2 is same. Both are same. So what we will do? We will summarize those, है ना. So final stiffness matrix is given by K equal to K1 plus K2. K equal to K1 plus K2. So what is the degrees of freedom here? For K1 is V1 theta 1. Let me change the color. So the degrees of freedom are V1 theta 1, V2 theta 2, है ना. इसी तरह से इधर V1 theta 1, V2 theta 2. These are the degrees of freedom for first element. तो उसको हम लिख देते हैं एज इट इज. ये तो एज इट इज आ जाएगा. 12 3000 minus 12 3000, है ना. So this is 3000. 1 into 10 to the power 6 minus 3000. 5 into 10 to the power 5. Then minus 12 minus 3000. Then 12. Then minus 3000. 3000. 5 into 10 to the power 5 minus 3000. 1 into 10 to the power 6. So first part K1 is over. है ना. So then K2. So for K2, I'm changing the color. So for K2, the degrees of freedom for K1 is V1 theta 1, V2 theta 2. The degrees of freedom for K2, है ना. K2 के लिए जो होंगी, that is V2 theta 2, V3 theta 3, and here also V2 theta 2, V3 theta 3. So I will take two more values, V3 theta 3, and combine these values here. So here also this is V1 theta 1, V2 theta 2. Okay. So this is V2 theta 2. Then this is V3 theta 3. In this row, it will be this whole. Hello, hello. हाँ, कौन बोल रहे हैं? कहाँ से?
Yes. So V3 theta 3, then अब हमारा जो डिग्री फ्रीडम है क्या है, V2 से स्टार्ट है ना, V2 थीटा 2। तो अब हम इन लाइनों में लिखेंगे यहां से, है ना। तो फर्स्ट वैल्यू इज 12, so I will write 12 plus 12 here. This will be 12 plus 12, and this is plus 3000. Next values are minus 12, 3000. Then further it is 3000. Check karte rehna. Then it is 1 into 10 to the power 6 plus. Then it is minus 3000. Then 5 into 10 to the power 5. Then minus 12. Minus 3000. 12 minus 3000. Then 3000, last line. 5 into 10 to the power 5 minus 3000. 1 into 10 to the power 6. ठीक है। अब जो बची हुई वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, 0. The remaining values will be 0. So it is a 6 cross 6 matrix, है ना। It is a 6 cross 6 matrix. ये चीज क्लियर है सबको? आकाश, कटवानी, अंकुर वगैरह। K1 1 और 2 को ऐड करता है, वो V1 थीटा। जो ग्रीन कलर में वैल्यूज हैं वो तो K1 है, और जो ब्लू कलर में वैल्यूज हैं वो K2 हैं। ठीक है। जो और जो कुछ भी नहीं आई वो वहां पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा समेशन हो गया, K1 और K2 का समेशन किया। 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स हमको मिल गई, स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर बीम। यहां तक क्लियर है? मुझे सुन पा रहे हैं? क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना, गुड। तो अब इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है? इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है F इक्वल टू के डेल्टा। F इक्वल टू के डेल्टा। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, के डेल्टा इक्वल टू F, ऐसे लिख सकते हैं। तो के क्या है, 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है। ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है, राइट। तो के को हम जरा लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है। डेल्टा हमारा कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, बताइए जरा। डेल्टा 6 क्रॉस 1, U1 V1 U2 V2 U3 V3 इक्वल टू फोर्स मैट्रिक्स। ये फोर्स मैट्रिक्स कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है हमारा, बताओ। फोर्स एट नोड नंबर 1 is F1, moment is M1, force is F2, moment is M2, ठीक है। force is F3, moment is M3, ठीक है। U1 due to shear force, theta 1 is due to moment, U2 again shear force, V2 due to moment at point 2, U3 is the displacement due to shear force F3, V3 no, it is V1 not U1, it is V1 theta 1, V2 theta 2 and V3 theta 3, V3 theta 3. So theta 3 is the result of bending moment M3, right। अब आते हैं हम बाउंड्री कंडीशंस पे। तो ये मैट्रिक्स तो एज इट इज वहां पे आ जाएगी, 6 क्रॉस 6 वाली है ना। ये 6 क्रॉस 6 जो है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, 6 क्रॉस 6 इस पोर्शन में आ जाएगी ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करें, बाउंड्री कंडीशंस बताइए इस पर्टिकुलर केस में। व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस? बिकॉज दिस नोड नंबर 1 इज फिक्स्ड, because it is a fixed support, that's why the vertical displacement will be 0, theta 1 will also be 0, slope will also be 0, ठीक है। And here this is a simply supported beam, roller support, that's why vertical displacement at node number 3, this is node number 2, so V3 will be 0. So these are the boundary conditions, V1 theta 1 and V3, right। So V1 equal to 0, है ना। So I am putting these values here, V1 equal to 0. So let me change the color first.
So boundary condition I am applying V1 equal to 0, theta 1 equal to 0, V3 equal to 0. These three are the boundary conditions. And what are the loading conditions? The loading conditions are at node number 2, the load is coming 20 downward. That's why F2 will be minus 20. F2 will be minus 20,000 Newton. Okay. So in place of F2, I will write minus 20,000. So in place of F2, I will write minus 20,000. So I am putting over here F2 equal to minus 20. Now at this particular point, this is the last point of the beam. So bending moment at this point will be 0. So in place of M3, I can again write 0. M3 I can again write 0. Okay. So at node number 2, there is a load of 20 kN, but there is no movement. So that's why M2 must be 0. So I will write M2 will be 0. So these three are the boundary conditions. We see these three are the loading conditions. Okay. So boundary conditions and loading conditions application. So these three boundary conditions are homogeneous in nature. कैसी boundary condition है ये? Homogeneous. So it will cut the first row. No, it will cut the first row and first column. So first column will be cut and first row will be cut and first column will be cut. So I am cutting over here. First row, first column will be deleted. Similarly, the second row and second column will be deleted. So I am cutting over here. Second row and second column will be deleted. Then this is the fifth row. So fifth row and fifth column will be deleted. So 1, 2, 3, 4. Fifth row is this one. Fifth row is this one. This is the fifth row. ध्यान से देख लेना. This is the fifth row. So fifth row and fifth column. So this is the fifth column. This fifth column is deleted. Fifth column is. What is the remaining part now? So 400 is also multiplied over here. So the remaining part is 400. Now we will get a 3 cross 3 matrix because V2, theta 2 and theta 3 will remain. So I will write over here the displacement first. V2, theta 2 and theta equal to, here F2 is minus 20,000. Minus 20,000, M2 is 0, M3 is 0, and the remaining matrix is, the remaining values are 12 plus 12, 24, minus 3,000 plus 3,000, 0. And so it is 24, 0 and 3,000. It is the first line. 24, 0, 3,000. And the second row is minus plus, this will be 0. 1 into 10 to the power 6 plus 1 into 10 to the power 6. So this 2 into 10 to the power 6. So this will be 0. 2 into 10 to the power 6. And the last value is 5 into 10 to the power 5. So I will write 5 into 10 to the power. And the last row is 3,000, 5 into 10 to the power 5, and 1 into 10 to the power 6. So it is 3,000. So first I will write 3,000, 5 into 10 to the power 5, and 1 into 10 to the power 6 equal to this. तो ये हमारा आफ्टर गॉसियन एलिमिनेशन, ये जो एलिमिनेशन हमने किया है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
ये कौन सा एलिमिनेशन कहलाता है? गॉस एलिमिनेशन मेथड. So this is the equation. So now there is three unknown. So from here v2, theta 2 and theta 3 can be found. यहां तक क्लियर है कि नहीं ये बताइए. कोई डाउट यहां तक? So from this solution, beta 2, theta 2 and theta 3 can be known. सॉल्व कर सकते हैं इसको बड़े आराम से. तो सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं सॉल्यूशन आपका लिख दे रहा हूं डायरेक्ट. इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी v2 is -3.6458 -3.6458 centimeter and theta 2 is 0.0125 radian. 25 radian. And theta 3 is -0.003125. 0.003125 radian. Please note the answers. टैली कर लीजिएगा. ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल गए? डिस्प्लेसमेंट निकल गए. v2, theta 2 and theta 3. तो देखो हमने क्या निकाल लिया? v2 निकाल लिया, theta 2 निकाल लिया. मुझे सुन पा रहे हैं ना? मुझे am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो v2, theta 2 and theta 3, ये तीन चीजें हमने निकाल ली. अब इधर आप देखें तो f1 आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट नोड नंबर 1, है ना, बिकॉज देयर इज अ फिक्स सपोर्ट. So it is a fixed support. So if you want to find the reaction at node number 1, then you can utilize the first row. So F1 can be found, F1 equal to this first row multiplied by this column. Okay. So अब first row को देख लेते हैं. इधर क्या क्या देखो, 12 है ना, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 0 होगा ना. ये देखो v1 0 है, तो 12 इंटू 0, सेकेंड पॉइंट इंटू 0. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इंटू v2, तो थर्ड पॉइंट हमारा आया है -3.6458. तो थर्ड पॉइंट हमारा कितना है? इसमें थर्ड वैल्यू हमारी है -12. बाकी तो जो 0 हो जाएंगी. सो इट इज -12 into v2 -3.6458. ये हमारा हो गया. अब फोर्थ पॉइंट इंटू थीटा 2, तो फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें? 3000. सो 3000 इंटू थीटा 2, सो दिस विल बी +3000 इंटू थीटा 2. थीटा 2 इज 0.0125. ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको. इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है बताइए जरा. कोई भी हमारा रिएक्शन फोर्स हो जाएगा. यस, आंसर बताएं. कर रहे हैं? Yes, sir, कर रहे हैं. हाँ, और बाकी सब 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो v3 भी 0 है, थीटा v3 0 है, इसलिए पांचवा पॉइंट 0 हो जाएगा, और छठा पॉइंट मैट्रिक्स में 0 है. 81.25. ये 0 कितना आ रहा है? 81.25. रिएक्शन फोर्स 81.25. हाँ, 81.25 सही है. ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, अभी आपने 400 का गुणा नहीं किया ना? 400 का गुणा भी होगा इसमें. ठीक है प्रत्युष? ओके सर. हाँ, अभी इसमें 400 का गुणा भी है. ये जो बाहर 400 है ना मैट्रिक्स के बाहर, उसका मल्टीप्लाई और करिए, तब बताइए. तो ये 32,500. 558. कितना आ रहा है? सर 32,500.
32,500 आ रहा है या 13,748 आ रहा है? एक बार फिर से करो। नहीं सर, 32,000 ही आ रहा है। -12 इंटू 12×36 होगा ये, हाँ? और इधर 3,000 इंटू 0.0। एक बार फिर से करिए, जब मैं भी करता हूँ। -12 इंटू -3.6458 प्लस 3,000 इंटू 0.0125 है ना, 0.0125 81.24 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 400। 32,499 मतलब 32,500 आ रहा है लगभग, है ना? यस सर। यस सर। तो हमारा ये रिएक्शन फोर्स हो गया 32,500 न्यूटन, यानी कि 32.5 किलो न्यूटन, है ना? अब आपसे आ जाएंगे उस m1 की वैल्यू क्या है। तो इन द सिमिलर फैशन विद द हेल्प ऑफ सेकंड रो यू कैन फाइंड द बेंडिंग मोमेंट। सेकंड रो में कौन कौन सी वैल्यूज देखो, वही आ जाएंगी ना। देखो ये तो जीरो लास्ट वाली दोनों, और ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे क्योंकि उधर एलिमेंट में जीरो है। तो केवल -3,000 इंटू B2 प्लस 5 इंटू 10⁵ इंटू थीटा। तो इस तरह से आप m1 भी निकाल लेंगे। तो f1 भी निकल जाएगा, m1 भी निकल जाएगा, ठीक है। f3 निकालना चाहें तो f3 भी निकल जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द बीम प्रॉब्लम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीम का आपको तो बाउंड्री कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, और का आपको एक जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। और एक साइन कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है ना। तो बीम के केस में हम लोग क्या करते थे, अपवर्ड फोर्स इधर डाउनवर्ड है, इधर क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम क्या मानते थे, पॉजिटिव कन्वेंशन मानते थे, है ना। जैसे बीम कोई पॉइंट ले लें तो राइट हैंड साइड में यदि कोई डाउनवर्ड शियर फोर्स है, इसका मतलब वो पॉजिटिव शियर फोर्स है। लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव है। तो राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। सो दिस इज द पॉजिटिव कन्वेंशन फॉर द बीम, ठीक है। स्टिफनेस के केस में कन्वेंशन हल्का सा चेंज है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट में तो कोई चेंज है नहीं। शियर फोर्स अपवर्ड, दिस इज so upward force is positive, so this is positive convention, ठीक है। जो स्टिफनेस का ये फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया है ना 12 -12 वाला, वो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिराइव है। तो बीम की कन्वेंशन और स्टिफनेस के कन्वेंशन में हल्का सा चेंज है कि अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, और मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव on the right hand side, and on the left hand side clockwise is positive. So these are the two conventions, ठीक है। तो ये हमारा अब इस तरह से बीम कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, ठीक है। वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, ठीक है। मुझे लग रहा है कि क्लासेस आपकी शायद 30 जून तक चलेंगी। कुछ आया क्या आपके पास इंफॉर्मेशन क्लासेस के बाद? सर अभी तो कुछ नहीं बताया गया है। हाँ, शायद द्विवेदी सर से बात होनी थी मेरी, तो वो बता रहे थे कि आप लोगों की क्लासेस 30 जून तक चलेंगी, तो तब तक तो हमारे पास काफी लेक्चर होंगे, तो हमारा सारा कोर्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम की तैयारी करते रहिए, राइट। चलिए मैं थोड़ा सा आपका वो करता हूँ, मतलब अभी तो हमारे पास एक लेक्चर और है ना आज, क्यों? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक हल्का सा रिवीजन करें। मान लो जैसे कि ये हमारी
बार है, ठीक है, ऐसे कोई फोर्स लग रहा है इस पे, इस पॉइंट पे, तो आप इसको मॉडलिंग कैसे करोगे एफईएम? इसकी मॉडलिंग के लिए सिंपल आप क्या करोगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड एलिमेंट, और आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या हो जाएंगी, यहाँ पे U1, यहाँ पे U2, यहाँ पे U3, क्योंकि ये एक्साइल डायरेक्शन में ही है केवल, तो यहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम U1 है, V1 तो यहाँ है ही नहीं कुछ भी, है ना, सो U1, U2, U3 और तो यहाँ पे आपका 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, बार के केस में। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमें और करना है, deformation of the bar due to deformation of the tapered bar due to self weight। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम इसी टॉपिक को लेंगे, पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से पहले, कि डिफॉर्मेशन ऑफ द बार ड्यू टू सेल्फ वेट, है ना। तो अभी इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं सेकंड लेक्चर में 4 बजे सेल्फ वेट के वाले एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। कौन कौन है क्लास में इस वक्त, एक बार अटेंडेंस ले लें। अंकुर चौहान, यस सर बोल दीजिए। अंकुर चौहान, कौशल यादव, लवकेश सिंह, यस सर। ओके ओके, ठीक है। रोहित कुमार सिंह, यस सर। गुड। आकाश खटवानी, यस सर। प्रत्युष कुमार गर्ग, Yes, sir. सागर शर्मा, सागर शर्मा, सागर, अंकुर, कौशल, इनमें से कोई है क्या? चलिए, so now I am ending this class. Thanks for watching. We will meet again after some time.